ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسے رنگت والے تاریخ کے بے مثال گھوڑے، جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیے؟ ہم آج اس ویڈیو میں ان نایاب گھوڑوں کے مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت جانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ لوگ گھوڑے کے خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات بھی رکھتے تھے جن میں ان کے مالک، موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجرہ نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک مکمل دستاویز ہوتی تھی جو ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتے تھے۔ نیز ان گھوڑوں کے تربیت کے لیے نوکر چوکر اور رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت اور ان کے نسل کے متعلق معلومات قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی۔ روایتوں کے مطابق ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر تھی، لہٰذا ایک دفعہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سیر و سفر کرے۔ لہٰذا اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں اس تخت پر سیر کر سکوں۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش پوری کرے، لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ 7 سمندروں کے بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی۔ ملکہ بلقیس یہاں کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوؤں میں پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گیا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ گھوڑے سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا، لیکن اب وہ ان کے دسترس سے نکل چکے تھے۔ لہٰذا جب سلیمان علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے محل آئے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے پکڑ لائیں۔ ان جنوں نے کہا، ہم خشکی کے جن دریاؤں اور سمندروں میں اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں، اس لیے اب اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندروں پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنوں نے جواب دیا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کے تہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ جب سمندر کے اس جن نے ان کی آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان کے خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان کو دیکھ کر جن تھر تھر کانپنے لگے اور اس نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان نے سمندری جن سے کہا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا تو میں نے وہاں گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوؤں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ سمندری جنوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان نے انہیں اس گھوڑے کو لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان کے خدمت میں پیش کر دیا۔
ये घोड़े नहायत ही उम्दा नस्ल के थे जिनका नाम जयाद था। लफ्ज़ जयाद जीद की जमा है जिसके माने तेज़ रफ्तार होता है। हज़रत सुलेमान के पास एक अजीमुशान लश्कर थी जिनमें इंसान, जिन्नात, जानवर और परिंदों के अलग अलग दस्ते होते थे। लिहाजा हज़रत सुलेमान ने अपने लश्कर में उन आला नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़ों के लिए एक अलग दस्ता बना दिया जो जंगों और फतूहात में हज़रत सुलेमान के लश्कर में सबसे अहम रोल अदा करते और हज़रत सुलेमान की फौजी ताकत बन गए। एक दिन का वाक़या है कि शाम के वक्त हज़रत सुलेमान उन घोड़ों को देख रहे थे और उनके बालों और पेशानी पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। आप उन घोड़ों की देखभाल में इस तरह मशगूल हो गए कि सूरज डूब गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। चुनांचा जब आपने नज़र उठाई तो वो घोड़े निगाह से ओझल हो चुके थे। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत सुलेमान को ख़बरदार किया कि ए सुलेमान, तुम दुनिया की माल के मोहब्बत में इतने मशगूल और गिरफ़्तार हुए कि नमाज असर भी अदा ना कर सके। अल्लाह को तुम्हारी ये मशगूलियत पसंद नहीं आई। हज़रत सुलेमान ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह के दरबार में तौबा व इस्तिग़फ़ार किया और सजदे में गिरकर देर तक रोते रहे। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, मेरे रब की इबादत से मुझे इस चीज़ ने गाफिल कर दिया, मैं ऐसी चीज़ ही नहीं रखूँगा। हज़रत सुलेमान को इतना दुख हुआ कि आपने उन घोड़ों को पेश करने का हुक्म दिया और फिर उनके परों को कटवा दिया। लिहाजा उन आला नस्ल जयाद घोड़ों के परों को काट दिए गए और फिर आज तक उनके पर फिर दोबारा नहीं निकले। इसके बाद दोबारा कभी इस दुनिया में उड़ने वाले घोड़े नहीं देखे गए। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान की तौबा कबूल फरमाई और उन्हें उन घोड़ों के बदले हवा पर इख्तियार दे दी गई। ये हवा उन घोड़ों से कई ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी जो आप अलैहिस्सलाम के लिए मसख्खर कर दी गई थी, जिससे हज़रत सुलेमान 1 महीने का सफ़र 1 दिन में तय कर लिया करते थे। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, वो कैसा अच्छा बंदा था, बेशक वो रुजू करने वाला था। जब उसके सामने शाम के वक्त तेज़ रफ्तार घोड़े हाजिर किए गए तो उसने कहा, मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज़ समझा, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर उन्होंने उनके पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। बाज़ लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उन घोड़ों को एक आम अरबी घोड़ों ही की नस्ल करार देते हैं और उड़ने वाले घोड़ों को महज किस्से, कहानियों और दास्तानों की बातें मानते हैं, जबकि अहादीस में इस बात की वाज़ेह दलाइल मिलते हैं। जैसा कि रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक या खैबर के सफ़र से वापस आए तो घर में तशरीफ़ फरमा हुए। जब तेज़ हवा के झोंके से घर के कोने का पर्दा हट गया, वहाँ सैयदा आयशा के खेलने की गुड़ियां रखी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उन पर पड़ गई। दरियाफ्त किया कि ये क्या है। हज़रत आयशा ने जवाब दिया, ये मेरी गुड़ियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके बीच एक घोड़ा सा बना हुआ है जिसके 2 पर भी कपड़े के लगे हुए हैं। पूछा, ये क्या है? कहा, घोड़ा है। फरमाया, और ये उनके ऊपर दोनों तरफ कपड़े के क्या बने हुए हैं? कहा, ये दोनों उनके पर हैं। हज़रत आयशा ने फरमाया, क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत सुलेमान के परदार घोड़े थे? ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, यहाँ तक कि आपके आखिरी दांत दिखाई देने लगे। इस रिवायत से ये बात साफ हो जाती है कि हज़रत सुलेमान का घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि उनके हकीकी पर थे और इस बात से अरब लोग वाकिफ़ थे। रिवायतों के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पर काट दिए तो फिर कभी उनके पर नहीं आए, जबकि उनकी नस्ल बरकरार रही। इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली का घोड़ा जुलजना भी उन ही घोड़ों की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और जुलजना का सजरा नसब हज़रत सुलेमान के घोड़े से जा मिलता है। दुनिया के अलग अलग तहजीबों, इलाकों और मज़ाहिब में भी इस उड़ने वाले घोड़े का जिक्र मिलता है। कदीम यूनान में इस घोड़े को पेगासस के नाम से याद किया जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक ये घोड़ा कदीम यूनान में हुआ करता था जिसका रंग सफ़ेद था। कहते हैं कि पेगासस का जन्म एक सिपाही पोजाइडन और एक राक्षस औरत मेड्यूसा के मिलाप से हुआ था।
रोमन माइथोलॉजी के मुताबिक पेगासस को सिर्फ वही शख्स उड़ा सकता है जिसका दिल खालिस और सच्चा हो। ये घोड़ा निहायत ही अक्लमंद और ताकतवर होता है। कदीम यूनानी लोग इसे ज़्यूस देवता की सवारी मानते थे, जो ज़्यूस को आसमानी बिजलियां लाकर दिया करता था। तारीख में जिस यूनिकॉर्न घोड़े का जिक्र मिलता है वो भी इसी पेगासस के नस्ल से ताल्लुक रखता था, जिसके पेशानी पर एक सींग हुआ करता था। ये एक तिलिस्माती और खूबसूरत सींग था जिससे कई बीमारियों का इलाज होता था। यूनिकॉर्न का जिक्र जापान, चीन, रूस और यूरोपीय ममालिक के किस्से कहानियों में मिलता है। कहते हैं कि यूनिकॉर्न दरअसल सिंधु घाटी में रहा करते थे और दुनिया में आखिरी बार भी उन्हें यहीं देखा गया था।